आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। जरा अडानी घोटाले के सबूत को आप देखिए, अडानी मोदी के रिश्तों के सबूत को देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस स्कैम में कितने बड़े लोगों का हाथ है। मैं दिखाऊं, मैं समझाऊं और आप समझिए कि कोर्ट में जो बंद लिफाफे में ले गया था सबूत को, उसको भी देखिए, उसको भी समझिए और देखकर समझकर समझिए कि दरअसल कितनी बड़ी साजिशें रची गई थी। चलिए, इससे पहले एक रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि अडानी स्कैम का जो खुलासा है, जो रिपोर्ट्स है, वो क्या है और सबूत को जरा गौर से देखें। I went to Parliament this morning with the idea of putting what I have said or what I feel on the floor of the House. 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said, look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me, and as a member of parliament, it is my right. It is my right to speak. He was non-committal. In his way, he smiled. But I'm hopeful that I will be allowed to speak tomorrow. What is going on here? This story started the day I gave my speech in Parliament about Mr. Adani. And I asked some fundamental questions to the Prime Minister about his relationship with the businessman, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things. What happened in Australia between the Prime Minister, Mr. Adani, and the Chairman of the State Bank, and one of the Chief Ministers of one of the states in Australia. That's a picture that is visible to everybody. Why is the Prime Minister of India sitting with the State Bank Chairman and Mr. Adani and an Australian leader? What is he discussing? And why, after that discussion, is almost $1 billion pledged by the State Bank to Mr. Adani? What was said in Sri Lanka? Why Mr. Rajapaksa, a person has made a statement saying Mr. Rajapaksa told him that Mr. Adani was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him. The same in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? These are the questions. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. आपने देखा इस रिपोर्ट को, और रिपोर्ट को देखकर आप समझे होंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार अडानी के सबूतों को छुपा रही है, किस तरीके से उस पर कोई आंच ना पाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, एक और सबूत दिखाते हैं कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद उनकी कंपनियां जो बर्बाद हुई और रातों रात वो जो करोड़पति बन गए, वो जो अमीरों के लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ गए, कैसे आ गए, किस चमत्कार से आ गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद, व्यादेश बनने के बावजूद भी उन पे फर्क क्यों नहीं पड़े, इस रिपोर्ट से देखकर समझिए। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है
मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आपने 2 रिपोर्ट्स देखे, दोनों रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि आज सीधे 2024 का चुनाव है। इसीलिए राहुल गांधी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और बता दिया कि आज मुझे माफी भले ही मंगवाने पे लोग लगे हुए हैं। हालांकि हमने कोई गलत नहीं बोला, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार जेपीसी की मांग नहीं कर रही है। अब देखना पड़ेगा कि इतना होने के बावजूद क्या सदन में बातचीत करने दिया जाएगा। अमित शाह जी ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश बन गए, आगे कमेटी बनाई गई कि नहीं, क्या कुछ हुआ अब तक कोई था पता नहीं। देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है। क्या मोदी सरकार राहुल के सवालों का जवाब दे पाएंगे, इन सबूतों का सवाल दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आजकल इतना ही, मुझे इजाजत। आप देखते हैं स्पेन न्यूज़। नमस्कार।